Hello, good morning dear students. In previous lecture we have seen dipole and electric potential as well as electric field due to dipole. Right now we are going to discuss whenever a dipole is placed in uniform electric field, then what will happen? Let's see dipole in a uniform electric field. Dipole in an uniform external electric field. Suppose this is an uniform electric field, external electric field, and we all know that uniform field is denoted by equidistant parallel lines. See, this is a uniform electric field having magnitude E. Now, if our dipole, suppose our dipole is placed like this. Our dipole is placed like this. See, this is plus q charge, this is minus q charge, and the distance between plus q and minus q is small, but we are going to denote it by 2a. Okay. So this is the dipole which is placed in an external electric field. Now we have to calculate net force as well as net torque, and work done to move it has angle theta. It has angle theta and the potential energy of a dipole. Okay, so one by one we are going to discuss. The very first topic is force. The very first is force on dipole. We know whenever a charged particle Q which is placed in an external field E, electric field, then force acts on it F equals to QE. F equals to QE. Now here we are having two charged particles Q and minus q. So the direction of force on positive charge particle will be in the same direction of electric field, whereas we are going to consider F equals to minus q E. It means the force on negative charge particle will be always in the opposite direction of electric field, will be on the opposite direction of electric field. So the direction of force on q is in this direction, this is QE. Okay, and the direction of force on minus q is in the opposite direction of electric field, which is also QE, If we are going to calculate net force on dipole, F net, then it will be QE plus, see, if I am going to consider F1 plus F2, we know the magnitude of F1 and F2 same, but the direction is opposite, or we can say the angle between F1 vector and F2 vector is 180 degree, because both QE and QE are anti-parallel to each other. So we can say by using parallelogram law, or we can say F1 and F2 are having same magnitude but opposite direction. So we will get F net equals to 0. It means whenever a dipole placed in an external electric field, then the net force on that particular dipole is 0. See, अगर आपका डाइपोल जो है बेटा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा. ये डजंट मैटर कि वो कौन से ओरिएंटेशन में है, कि वो इंक्लाइन पे है, कि वो परपेंडिकुलर है या वो पैरेलल है. ठीक है, तो उसके ओरिएंटेशन से टॉर्क पे फर्क पड़ेगा. बट आपकी बात की जाए फोर्स पे, तो नेट फोर्स कितना? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका डाइपोल रखा तो उसमें नेट फोर्स 0. अच्छा, नेट टॉर्क की बात करते हैं. सेकंड केस है टॉर्क. अच्छा, टॉर्क तो आपने पढ़ा होगा बेटा. फोर्स क्या है? पुश और पुल है. बट टॉर्क क्या है? फोर्स का रोटेटरी एफर्ट क्या है? टॉर्क है. अच्छा, किसी चीज को चलाने के लिए हमें पुश पुल करना है तो वो फोर्स है, बट किसी चीज को घुमाने के लिए तो वो टॉर्क होता है. तो नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल. ठीक है. अच्छा सर, बात करते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल की बात करते हैं. तो ये आपका डाइपोल है. इस डाइपोल के सपोज करके ये वाला आपका डाइपोल है, और ये डाइपोल का इस इलेक्ट्रिक फील्ड से सपोज करके एंगल कितना है बेटा? थीटा एंगल. कितना एंगल है? थीटा.
अब मैं बात करता हूं कि बेटा आपने 11th में अगर स्टैंडर्ड में पढ़ा हो तो आपको बोला गया था कि टॉर्क अगर कैलकुलेट करना है और फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम में पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क बोथ आर जीरो ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, देन वी कैन से इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा बात करते हैं कि सर एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है। अच्छा एफ नेट तो जीरो है। बात करते हैं हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? टॉर्क कैलकुलेट करना है। अच्छा सर टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क क्या होता था बेटा? आर क्रॉस एफ। इट मींस डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट दिया जाएगा आर और एफ का। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे देते थे? तो आप सर इस टॉर्क की बात करोगे तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा? आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। और डायरेक्शन कहां से देंगे हम? क्रॉस प्रोडक्ट से या राइट हैंड रूल से? राइट हैंड रूल क्या बोलता है क्रॉस प्रोडक्ट का? कि वी हैव टू स्ट्रेच द राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा बात करते हैं कि अगर एफ नेट जीरो है, सपोज कि एफ नेट जीरो है तो एक आपको स्टेटमेंट बोला गया होगा इफ एफ नेट इज जीरो देन टाउ या टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो बट टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट, बट टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। इन दिस कंडीशन इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, if body is free to rotate then it will rotate to the axis which is passing through its COM and perpendicular to the plane or perpendicular to the direction of torque vector and perpendicular to the direction of torque vector। इसका मतलब ये है मैंने स्टेटमेंट जो बोला बेटा कि अगर आपका नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो हो भी सकता और नहीं भी हो, बट टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट सेम होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको अभी थोड़ा ये ध्यान देना है कि टॉर्क मुझे कैलकुलेट करना है। मान लो कि मैं इस मिड पॉइंट के अलोंग टॉर्क कैलकुलेट करता हूं कि मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर है, ठीक है, तो इसके अलोंग तो ये वाला डिस्टेंस बेटा ए हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी ए हो जाएगा। अच्छा हाफ हाफ डिस्टेंस है ए और ए। मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट में टॉर्क लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा टाउ अबाउट ओ, मैं लिखूंगा टाउ वन, ये वाला प्लस वाला वन लिखो, इसको टू लिखता हूं, चलो कोई बात नहीं। आप बोलोगे सर टाउ जो होता है आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। अच्छा आर कितना? तो आर बोलोगे सर आर तो इसका जो है बेटा वो है ए, एफ कितना? क्यू ई, ए इंटू क्यू ई, ए इंटू क्यू ई इंटू साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा एज इट इज लिख देता हूं क्योंकि आर क्रॉस एफ बोलो तो आर एफ साइन थीटा। आर कितना बेटा? यहां से ए है, एफ कितना है? क्यू ई है, साइन थीटा एज इट इज। अच्छा डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन सर आर क्रॉस एफ, तो मैं बोलूंगा ये तो मेरा आर की डायरेक्शन मतलब एरिया, जो आपका ए जो है ये डिस्टेंस वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है ए, और फोर्स की डायरेक्शन बेटा कर्ल करूंगा तो ये यहां से फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल किया तो मेरा जो ये जो टॉर्क आया वो कैसा है बेटा? डाउनवर्ड द पेज। और डाउनवर्ड द पेज को हम लिखते हैं बेटा डॉट से, सॉरी क्रॉस से लिखते हैं, डाउनवर्ड को क्रॉस से लिखते हैं, है ना, आउटसाइड को हम लिखते हैं डॉट से। अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट या बोल सकते हैं डाउनवर्ड है। अच्छा टाउ वन हुआ प्लस सर इसकी वजह से भी तो टॉर्क आएगा। अच्छा इसकी वजह से टॉर्क कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सर आर क्रॉस एफ, देखो बेटा ये आर है, क्रॉस एफ किया तो इसका भी डाउनवर्ड आएगा ना। देख ये सर ये राइट हैंड रूल है, हमें ये बोलता है कि हमें वी हैव टू स्ट्रेच द डायरेक्शन। सी मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो ये वही होगा ए क्यू ई साइन थीटा, ए क्यू ई साइन थीटा, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन सर बोलता है आर क्रॉस एफ, मतलब आर की वेक्टर में फिंगर्स को स्ट्रेच करो, राइट हैंड फिंगर्स को तो मैंने स्ट्रेच किया और फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने कर लिया तो मेरा थंब कहां जा रहा है बेटा? डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये भी क्रॉस होगा। अच्छा तो टाउ नेट जो आया पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क बोलूं कि ओ के अबाउट नेट टॉर्क बोलूंगा तो वो बेटा कितना आएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन बाद में दे देंगे, डायरेक्शन बाद में देंगे। टाउ नेट आएगा बेटा आपका ए क्यू ई, और ए क्यू कितना हो गया? तो ई इंटू 2a इंटू क्यू साइन थीटा, ठीक है। मैंने 2a क्यों लिखा? देखो आपका बेटा a क्यू ई साइन थीटा, a क्यू ई साइन थीटा कितना हो गया? 2a क्यू ई साइन थीटा, 2a क्यू ई साइन थीटा। अच्छा 2a क्यू ई साइन थीटा हो गया तो 2a क्यू ई साइन थीटा को अगर मैं बात करता हूं तो 2a क्यू ई टॉर्क नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2a क्यू ई साइन थीटा। एंड वी नो q इंटू 2a, q इंटू 2a, q इंटू 2a क्या है बेटा? p है। q इंटू 2a क्या? मोमेंटम है ना इसका, क्या इसका मोमेंट है, किसका? डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू separation between charge particles, and we have considered the separation between charge particles is 2a, that's why we can say q into 2a is p।
नाउ टॉर्क वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, ये P आ जाएगा और ये E आ गया और ये साइन थीटा आया, P साइन थीटा। अच्छा, ये RF साइन थीटा को मैं R क्रॉस F लिख सकता हूं, तो P साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा, P क्रॉस E। क्या आ गया, P क्रॉस E। देखो P भी एक वेक्टर है और E भी एक वेक्टर है, सो ये आपका टॉर्क आया। कौन आया, टॉर्क आया, P क्रॉस E। P क्रॉस E क्या है बेटा, टॉर्क आया। ये आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टॉर्क आया P क्रॉस E, मतलब PE sin थीटा। अच्छा, sin थीटा मतलब सर थीटा है, और थीटा क्या है, एंगल है। थीटा क्या है, मैं बात करूं हियर, थीटा एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड A वेक्टर, P वेक्टर एंड E वेक्टर। सी P की डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा P की डायरेक्शन होगी सर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये P की डायरेक्शन है और ये E की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, P क्रॉस E का। और P क्रॉस E की वैल्यू बोले तो PE sin थीटा, और P का वैल्यू बोले तो Q into 2A, और E आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको गिवन होगा। अच्छा, ये अब तक समझाया। मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा बेटा आपसे। एग्जांपल क्या बोलता है, सपोज, और पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 या 15 आई थिंक इन जेई, चलेगा। So in JEE 2015, I'm going to consider an example. Suppose the statement first is along like this: F net 0. If F net 0 implies torque net is 0. Torque net is 0. Second statement like this: if torque net is 0, tau net is 0, implies F net also 0. F net also 0. The options are, both statements are true. Both statements are true. B is true and false. C is false and true, and option D is false and false. Let me tell you, the torque is R cross F. Torque is defined as R cross F. Simply, you have to answer. बेटा ये क्वेश्चन आपने 7th चैप्टर आई थिंक या 8th चैप्टर में टॉर्क वाला रोटेशन मोशन में आपने पढ़ लिया है कि फोर्स 0 है, इसका मतलब ऑलवेज टॉर्क 0, और टॉर्क 0 है, इसका मतलब ऑलवेज फोर्स 0। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। अच्छा, आपने सोच लिया होगा क्या सही है और क्या गलत है। अगर नहीं सोचा तो पॉज करे और सोचे, ठीक है। मैं डिस्कस करता हूं। मैं बोलता हूं कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, मैं बोलता हूं कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब ऑप्शन आपका डी सही है। कैसे गलत है मैं आपको समझाता हूं बेटा। इसके लिए अभी जस्ट मैंने टॉर्क के बारे में पढ़ाया, तो उसी का थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि आपको टॉर्क आया कहां से। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज करके मैंने एग्जांपल लिया, इसके लिए इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको केस डिस्कस करता हूं। सपोज कर कि द वेरी फर्स्ट केस इज अ रॉड या डाइपोल को कंसिडर कर लेता हूं कि ये रखा है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर F, और सेम फोर्स इधर भी लग रहा है F, है ना। अच्छा, अब इस पे नेट फोर्स कितना, इस पर्टिकुलर कंडीशन में F नेट कितना 0, और टॉर्क नेट कितना बेटा, टॉर्क नेट। आप बोलोगे सर ये तो नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो है, क्योंकि ये घूमेगा। कैसे घूमेगा, मैं आपसे बात करूं, ये डस्टर है, डस्टर पर मैंने एक फोर्स इस डायरेक्शन में इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया, तो क्या ये घूमेगा, हाँ सर। मतलब फोर्स नेट फोर्स 0 है, बट टॉर्क क्या है इसका, नॉन जीरो है। मतलब ये पहला देखो, F नेट 0 है बट टॉर्क नेट नॉन जीरो आया कि नहीं आया। अरे सिंपल सा एग्जांपल बेटा, आप ये डस्टर सोचो, इस डस्टर को मैं अपर एंड को मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, लोअर एंड को इस डायरेक्शन में, तो क्या ये घूमेगा, हाँ सर घूमेगा। मतलब ऑलवेज 0 नहीं हो सकता, ऑलवेज 0 नहीं हो सकता। मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं, सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं। यही डस्टर मैंने इस ओरिएंटेशन के साथ रखा, ये रहा, ठीक है। मैंने इधर फोर्स लगाया, सपोज कर कि F लगाया, और इधर फोर्स लगाया 2F। बोलो नेट फोर्स, टॉर्क बोलो। आप बोलोगे सर टॉर्क तो 0, नेट टॉर्क 0। क्यों 0, क्योंकि ये जो टॉर्क जो होता है R क्रॉस F होता है। टॉर्क क्या होता है बेटा, R क्रॉस F होता है। टॉर्क जो होता है बेटा RF sin थीटा होता है। सर F तो है, R क्या है, R जो है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के लगने की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये ऐसा है तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अबाउट रोटेट होगा। तो इस एक्सिस से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, सर कुछ नहीं है, ये
जो फोर्स जो है उसी एक्सिस से तो पास कर रहा है, उसी एक्सिस से पास कर रहा है ना। हाँ, तो इसका एफ आर कितना 0, आर 0, तो इसकी वजह से मतलब टॉर्क 0, मतलब यहाँ एफ नेट क्या है, नॉन जीरो है। एफ नेट क्या है, नॉन जीरो, मतलब टॉर्क 0 है तो जरूरी नहीं कि फोर्स 0 हो, और अगर फोर्स 0 है तो भी जरूरी नहीं कि टॉर्क 0 हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बेसिक एग्जांपल से समझाया 11th का कंसेप्ट, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपका टॉर्क अगर 0, आपका फोर्स नेट फोर्स 0 है, बट टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, बट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नेट टॉर्क, देन वी may calculate torque about each and every point and we will get the same, अगर आपका नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो, लेकिन टॉर्क about each and every point will be same, okay. Now we have to calculate a potential energy of a dipole in an external force. सपोज करके आपका ये डाइपोल है, तो डाइपोल बेटा आपको क्या चाहेगा कि डाइपोल की टेंडेंसी होगी कि ये जो इस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 हो। अच्छा, नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 कब हो सकता है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो और इसी में आपको क्या रखा हो, आपका डाइपोल रखा हो, तो ये इधर क्यू ही लगेगा, इधर क्यू ही लगेगा, माइनस क्यू पे और प्लस क्यू पे। अच्छा, इस केस में नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या है, दोनों 0 है ना। तो कोई भी सिस्टम क्या चाहता है कि कोई भी सिस्टम, एनी सिस्टम वांट्स स्टेबिलिटी इन नेचर, कि कोई भी सिस्टम है नेचर में तो वो क्या चाहता है बेटा, स्टेबिलिटी चाहता है, और उस स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहेगा कि उसका नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0, तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कैसा होगा, स्टेबल, और एंटी पैरेलल होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, अब देखते हैं हम आगे कि सपोज करके ये सर पैरेलल था तो इसको रोटेट करना पड़ेगा, ये जो पैरेलल था तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो वर्क करेगा, तो इसको मैंने रोटेट करवाया। ये ऐसा था पैरेलल चाहता तो मैंने उसको रोटेट करवाया, कितना करवाया, थीटा से रोटेट करवाया। अच्छा सर, थीटा से रोटेट करवाने के लिए जो वर्क होता है वो dw होता है, और dw क्या होता है, टॉ डी थीटा होता है। अरे फोर्स होगा तो फोर्स का वर्क होगा F डॉट dr, लेकिन यहाँ अगर टॉर्क की बात करता हूँ तो टो इंटू डी थीटा, क्योंकि हम यहाँ रोटेट करवा रहे हैं तो जो रोटेशन का एंगल होगा वो डी थीटा होगा। तो उसके लिए अगर मैं ये बात करूँ तो सर टॉर्क वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल टॉर्क है तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, F डॉट, जैसे वेरिएबल वर्क हो तो वर्क में करते थे बेटा F डॉट dr, ठीक है। तो वैसे ही टॉर्क में लिखते हैं टाउ इंटू डी थीटा। अच्छा, टॉर्क तो अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया पीई, टॉर्क कितना कैलकुलेट किया, पीई, बट यहां मैंने एक माइनस साइन यूज किया है। माइनस साइन क्या देता है बेटा, कि माइनस साइन ऐसा बोलता है कि सर टॉर्क क्या चाहता है, कि इसका टॉर्क चाहता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो, इसका टॉर्क की टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट करने की, जबकि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा वो क्या है, अपोजिट टू द टॉर्क। हियर अगर आपको नेगेटिव साइन समझ में ना आए तो आप लिख लेना, हियर नेगेटिव साइन, वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा इज अपोजिट टू द टॉर्क। थीटा जो है बेटा वो अपोजिट है किसके, टॉर्क के। ये थीटा है और टॉर्क क्या चाहता है, ये टॉर्क की डायरेक्शन है। टॉर्क ट्राइज टू रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन whereas we are going to displace it in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज माइनस साइन। ओके, माइनस साइन का रेफरेंस ये है। अच्छा, वर्क क्या होगा बेटा, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा, पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है एक्सटर्नल फील्ड, तो मैं लिखूंगा माइनस पी डॉट ई, बाहर आ गया, मुझे इंटीग्रेट करना है साइन थीटा डी थीटा, एंड वी नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा। मैंने इसको थीटा नोट समझा कि ये थीटा नोट था तो उससे मैंने डिस्प्लेस करवाया, ठीक है, कोई भी एक एंगल हो सकता है। फिर मैंने लिखा वर्क इक्वल्स टू माइनस पीई, और साइन का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कोस एज इट इज रखा। अच्छा, पीई अगर मैं इस साइन को अंदर ले, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। कोस का वैल्यू रखता हूं तो लिमिट कैसे लिखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर नेगेटिव साइन के साथ लोअर लिमिट, तो हो गया पीई कोस थीटा माइनस थीटा नोट। अच्छा, वर्क की बात करता हूं, P cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। अच्छा, वर्क क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट देन इट द एनर्जी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीजेस। तो सिस्टम ने काम किया तो मान लो कि इसकी नेगेटिव एनर्जी क्या होगी, माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू होता है फाइनल माइनस इनिशियल, सो माइनस को मैंने इंक्लूड करवाया तो ये क्या हो गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, पी अंदर लेके गए तो cos थीटा माइनस नॉट माइनस cos थीटा हो गया। अच्छा, बात करता हूं कि एंगल अगर थीटा है तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर लिया u, एंगल थीटा है तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर लिया u, और मैंने एंगल पाई बाय 2 को, लेट वी आर गोइंग टू कंसीडर इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पाई बाय 2, देन वी विल कंसीडर इट एज रेफरेंस पॉइंट, देन वी विल कंसीडर इट एज रेफरेंस पॉइंट, एंड इन दैट एंड वी नो रेफरेंस पे हम क्या मानते हैं, किसी चीज को जीरो कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो ये जीरो कंसीडर किया रेफरेंस पॉइंट पे, तो u कितना हो गया, P जीरो माइनस cos थीटा, u कितना हो गया बेटा, P, क्योंकि cos 90 कंसीडर लिखूंगा थीटा नोट का, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 कितना, जीरो, cos 90 कितना होता है बेटा, जीरो होता है cos 90।
0, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्लेस 0, PE 0 माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा PE माइनस PE cos थीटा, एंड वी नो डॉट प्रोडक्ट होता है P डॉट E का प्रोडक्ट होता है वो PE cos थीटा होता है, और जब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर, एंड वी ऑल नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन से U इज माइनस P डॉट E, U इज माइनस P डॉट E, P डॉट E। ओके, सो ये कई बार हो सकता है आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेथड नहीं दिया है, बट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि U जो है वो P डॉट E का नेगेटिव है, टॉर्क जो है वो P क्रॉस E है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करके बेटा आपका कोई एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज करके आपका कोई एक चार्ज पार्टिकल है, अगर अकेला चार्ज पार्टिकल है तो आप बोलो कि सर इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी की नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब पोटेंशियल आए या इंटरेक्शन हो, अगर इंटरेक्शन नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर बेटा ये किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कि ये जो है वो किस में रखा है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, और वो ई कुछ भी हो सकता है ना, तो अगर ये यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिस पॉइंट पे ये चार्ज पार्टिकल रखा है, सपोज एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, so we can say U equals to QV। अच्छा, E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ कोई पोटेंशियल रहा होगा, सपोज करके V पोटेंशियल है, क्या है V, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको कोई चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, U equals to QV। अगर मान लो कि सर हमारा जो चार्ज पार्टिकल एक ना हो के सिस्टम ऑफ चार्जेज हो जाए, सिस्टम ऑफ चार्ज हो जाए, सपोज करके ये एक मीडिया है उसमें आपका चार्ज पार्टिकल्स रखे, सपोज करके ये चार्ज पार्टिकल Q1 रखा है तो यहाँ पोटेंशियल उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से V1 है, सपोज करके ये Q2 रखा है और उस Q2 लोकेशन पे पोटेंशियल V2 है, और ये मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो आप बोलोगे कि सर एक्सटर्नल फील्ड में इस सिस्टम की मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो आप बोलोगे सर U1, एक तो Q1 को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसकी वजह से, एक Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा उसकी वजह से, इस कंसेप्ट से, और एक सर दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से एक पेयर बनेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस इंटरेक्शन की वजह से कितना, Q1 Q2 अपॉन R। ये सिंपली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, वरना अदरवाइज वी ऑल नो दैट U इक्वल्स टू QV और वर्क इक्वल्स टू QV, और वर्क ही क्या बेटा, एनर्जी है। तो सिंपली अगर आपकी मोर देन वन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करके आप थर्ड चार्ज पार्टिकल भी रखा होता, तो थर्ड रखा होता तो आप क्या लिखते हैं, Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस Q3V3 प्लस KQ1Q2 अपॉन R12 प्लस KQ2Q3 अपॉन R23 प्लस KQ1Q3 अपॉन R13 और R31, सिंपली, है ना। तो ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। If there are 3 charge particles, then total number of pair will be 3. If there are 2 charge particles, then there will be total number of pair 1. And ये हम पढ़ चुके हैं एडिशनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, और ये हम पढ़ चुके हैं अभी रिसेंटली। तो अगर आपका कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिस्टम ऑफ चार्ज रखा हो तो सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना सीखा है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि जहां जिस लोकेशन पे चार्ज रखा है तो उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज QV। So we will write down like this. If 2 charge particles are over there, then we will write, okay. The next topic is properties of conductors. Properties of conductors, है ना, वो theoretical portion है। मैं थोड़ा सा कुछ काम की चीजें डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सर अगर मैं मटेरियल को बाइफरकेट करता हूँ तो there are 3 type of materials: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। अगर मैं सिंपली बात किया जाए बेटा तो आपके मटेरियल्स की बात कर लेता हूं थोड़ा सा सिंपली। अगर सर मटेरियल्स को बाइफरकेट करें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, देन देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंडक्टर मटेरियल्स। मटेरियल्स की बात करते हैं तो बेटा 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सर? कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब आपका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके साथ हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊं बेटा 2 टाइप से बाइफरकेशन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अच्छा, मैं सिंपली अगर थोड़ा सा एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करता हूं तो बेटा ये आपका कौन होता है? वैलेंस बैंड होता है। कौन सा होता है? वैलेंस बैंड होता है। और एक आपका कंडक्शन बैंड होता है ना, ये आपका कंडक्शन बैंड होता है। और वैलेंस बैंड के अपर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल का जो एनर्जी
गैप जो होता है उसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा इजी। क्या बोलते हैं बेटा? फोरबिडन एनर्जी गैप। अब इस डेल्टा इजी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी के बारे में वैसे ही कंसेप्ट करेंगे। सपोज करके कंडक्टर्स के लिए, अच्छा कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर्स में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ओवर देयर। बात करूं जैसे आयरन है, कॉपर है, तो ये सब की कंडक्टिविटी कैसे है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम, इनकी कंडक्टिविटी हाई है। क्यों हाई है? एक तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा इजी ऑलमोस्ट जीरो, डेल्टा इजी ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब आप इसके साथ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है, ओवरलैप रहते हैं, तो ये एब्सोल्यूट मतलब जीरो टेम्परेचर पे भी आपका जो है वो कंडक्शन कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे तो इजीली सेमीकंडक्टर भी कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो आपको यहाँ बाइफर्केशन कैसे करना है कि कंडक्टर जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अवेलेबल ओवर देयर फॉर कंडक्टिविटी। इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है बेटा, आपकी बात करूं तो जैसे जैसे सी इफ अगर मैं डिस्कस करना चाहूं कि आपके बारे में, सपोज करके सर ये Na है और ये Cl है और ये इसका बॉन्ड है, तो चार्ज बनेगा कब, जब ये NaCl बॉन्ड ब्रेक हो जाए, NaCl बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो NaCl का बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब आप बोलोगे सर ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो BDE हैश लॉ पढ़ा होगा आपने, है ना। तो BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर अगर मैं एनर्जी देता हूं तो बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, उसकी वजह से चार्ज जनरेट हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टर, तो उसमें बताएंगे कि रेजिस्टेंस का जो आपका कोई भी मटेरियल उसका रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, तो वो हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ओवर देयर। अच्छा हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स इट मींस उसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है दैट माइट पार्टिसिपेट ऑन चार्ज flow, current flow that might possible on current flow whenever we are going to apply the potential difference across the conductor terminals, then okay। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं कुछ एक दो पॉइंट काम के हैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज करके आपका कोई कंडक्टर है, सपोज करके आपका कोई कंडक्टर है, मान लो कि आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके। इसको मैंने किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैं डिनोट नहीं कर रहा हूं, आपको ये कंसीडर नहीं करना, इसके प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सर ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होगा कि इसके अंदर चार्ज है, और चार्ज जो होगा ये मटेरियल है, तो मटेरियल किसी चार्ज पार्टिकल्स होंगे ना, मटेरियल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। तो सर अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा कैसा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ इसमें एक इंडक्शन होगा, क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, कौन होगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अच्छा सर चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो उसकी वजह से मान लो कि ये चार्ज इंड्यूस्ड हुआ तो यहाँ कौन आएगा बेटा, नेगेटिव चार्जेस इधर शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पे F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू QE, इट मींस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव पे, अच्छा इसकी वजह से। अब बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ, मतलब एक नया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये E इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E इंड्यूस्ड, और ये कौन है, E एक्सटर्नल है। अच्छा बात करते हैं कि सर जब whenever we are going to put a conductor in an external electric field, then and new charge particles induced in that particular conductor in such a way that the induced charge creates its own electric field having the same magnitude but opposite direction, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि E जीरो हो जाएगा, किसमें, E नेट जीरो हो जाएगा इनसाइड, E नेट जीरो हो जाएगा कहाँ, इनसाइड द कंडक्टर। समझ में आया क्यों जीरो हुआ, क्योंकि सर ये जो मेरा जो है आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन में, तो एक नया इंड्यूस चार्ज होगा और वो इंड्यूस चार्ज की वजह से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इनसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो E नेट कितना होगा, जीरो होगा। इस कंडीशन में इस कंडक्टर में क्या होगा, E नेट जीरो होगा, E नेट
जीरो होगा। अगर ई नेट जीरो होगा तो इसके कंडक्टर का जो सरफेस होगा वो क्या होगा बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये जो सरफेस है जो कैसा होगा, सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल। अच्छा, इक्विपोटेंशियल का मतलब आपको समझाया कि द पोटेंशियल एट विच द पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, दैट पर्टिकुलर सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल। अगर इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल कितना, जीरो है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये वाला सरफेस पे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो परपेंडिकुलर है सर, तो ये वाली फील्ड लाइन कैसे होगी बेटा, ये थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाएगी। ये वाली फील्ड लाइन कैसे होगी, ये ऐसे थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर रहेगी। अच्छा, ये वाली कैसे होगी, तो सर ये वाली सीधी नहीं जाएगी, ये वाली थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा, बैंड हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, रिसेंट ईयर्स में जेईई ने क्वेश्चन किया था कि विच वन शोज द एग्जैक्ट और विच वन शोज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और विच वन फिगर इज करेक्ट। मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन कैसे दिए थे उसने बेटा, ऑप्शंस उसने कुछ ऐसे दिए थे। आपको इस पॉइंट का मतलब समझ में आया कि सर अगर whenever we are going to put an conductor in an external electric field, then the electric field inside a conductor zero, then electric field inside a conductor zero. Why zero? Because if we are going to put, then the conductor itself induce the charge inside, and the direction of electric field opposite to the direction of electric field. सो ई नेट जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, मैं उसको पहले को ऐसा बोला गया कि ऐसा है, दूसरे को ऐसा बोला गया, दूसरा ऑप्शन ऐसा था बेटा ये कंडक्टर है इनसाइड, ऐसा कुछ बोल दिया उसने, ठीक है। और तीसरा जो कुछ था ऐसा कुछ था, ये तीसरा वाला प्रॉपर्टी जो था ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है ना, तीसरा वाला बेटा ऐसा कुछ था, ये वाला फील्ड ऐसे एज इट इज था, डायरेक्ट था, ये वाला ऐसे, ये वाला थोड़ा सा घुमा के था परपेंडिकुलर, और ये वाला भी ऐसे घुमा के था परपेंडिकुलर, ये सीधा निकल गया, ये थोड़ा ऐसे था, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है, क्योंकि ये इनसाइड तो जीरो है, ये जीरो क्यों, ये गलत क्यों था, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि सर वी नो व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स सरफेस इज एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड वी नो ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सी, अगर ये परपेंडिकुलर है बट ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये 90 नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी गलत है। यहां देखेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हम इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग में काम में ले सकते हैं। किसमें काम में ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग में। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें शेल्ड करना है तो हम उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। किससे, हम उसको एक कंडक्टर से उसको कवर कर देंगे, तो कंडक्टर की सरफेस पे क्या होगा, एक्सटर्नल चार्ज। हम जो भी एक्सटर्नल चार्ज देंगे वो कहां जाएगा, उसकी सरफेस पे रिसाइड्स करता है। अच्छा, कई बार ये होता है कि इरेगुलर शेप का आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रॉपर्टीज की स्पेसिफिकेशन पूछ लिया जाता है कि मान लो कि ये कोई ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये ऐसा नहीं, थोड़ा सा मैं इसको शेप दे देता हूं, ऐसे मान लो कि शार्प एज है ना। आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, आपको बताया गया कि सपोज करके यहाँ E1 है, यहाँ ये E2 है और ये E3 है, तो आपसे पूछा सिंपली कि सबसे ज्यादा कौन, तो बेटा शार्प एजेस पे चार्ज ज्यादा होगा, शार्प एजेस पे क्या ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो E3 सबसे ज्यादा है, फिर E2 है और फिर E1 है। ध्यान रखना, जो जितना शार्प होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही शार्प। शार्प का मतलब आप सोचो पेनिट्रेशन से सोचो कि जो जितना शार्प होगा उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। सिंपली याद करने का लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, है ना। और बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आप लोग पढ़ लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स के बाद। उसके बाद में आपको है डाइइलेक्ट्रिक है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर। 2 लेक्चर्स में कैपेसिटर होने के बाद में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूनिट फर्स्ट बोला जाता है, दोनों को कंबाइनली, तो उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।